वंडर सीमेंट साथ साथ क्रिकेट महोत्सव 2016 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अवनीत कोहली और मैं खड़ी हूं दिल्ली पब्लिक स्कूल उदयपुर के ग्राउंड पर। मेरे साथ हैं तरुण चौहान जी जो सीनियर मैनेजमेंट लीडरशिप टीम से हैं हमारे वंडर सीमेंट से। सर, इट्स बिन अ फैंटास्टिक जर्नी सो फार। 90,000 लोग, 9,000 टीमें, इतना मेगा टूर्नामेंट, कैसे रहा है अब तक का सफर? Good morning, Rajasthan. Good morning, everyone who loves cricket. Welcome on board. It's been a great journey. इस जो tournament का planning हुआ था, we had conceptualized that we wanted every youngster in Rajasthan to participate in this Mahotsav. The important thing about this event was that it was more than cricket, it was a social event. And we wanted families to participate, youngsters to participate, and every walk of life, people to participate and enjoy what we are doing. We wanted the brand to be part of their social life, and we use cricket as a means to get there. Do you think cricket unites the country? And how did you all go about the entire campaign? See, when we were conceptualizing the idea, we looked at various platforms, and we thought about rural events, we thought about sports, and then we zeroed in on cricket because we realized that cricket is one sport we don't have to explain to anyone. It's such an integral part of India. People understand what cricket is. People understand what a wicket is, what a ball is, what a bat is. You don't have to explain basics. And the moment you start the process correctly, getting people to participate is not difficult. तो सर कितनी तहसील्स थी, आपने कैसे एग्जीक्यूट किया ये पूरा कैंपेन? The structure of this tournament and the basic premise of this tournament has been that we have to get every last person who's a citizen of the state to participate in this tournament in some form. So our planning started from absolutely the grassroots level. If you look at the construct of this tournament, the first round tournament matches happened at the Tehsil level. We had 248 Tehsils in which we had our first round of tournament starting from. At the Tehsil level, we had 16 teams participating. Now, we didn't realize that there would be more than 16 teams participating at a Tehsil level. So we actually sat and then figured out, because we had 120 entry forms at each Tehsil. So we had to then sit and figure out how to sort that thing out. We had something called the lucky draw there. And the lucky draw was held in the presence of the local dignitaries. There were VIPs there. There were senior citizens there. There were all kinds of, from all walks of life. And it had become another small mini event over there where people were participating in the lucky draw. And then that event took place for a day, and end of the day, we had 16 teams from each Tehsil that was finalized to participate in the tournament. So that has been the beginning of the journey, and that is how the journey started. And we had, it was amazing the kind of people who participated at the Tehsil level. At that stage, it was amazing. We had about 11 or 12 all-women team. There were teams from police, there were teams from cross-section of society. So some of these teams, we gave them a first round bye and we got them to play at the district level. So that is how the whole process started, and that is how the journey has begun. So I have to say that this is a mega tournament. जिस scale पे आपने ये manage किया है, it's not imaginable. आपके हिसाब से, what are we expecting today? Frankly, the journey has been so beautiful that today is the culmination of our journey. And there have been people from the event company, there have been people from the sales team, there have been people from the marketing team, there were people from the brand team who have spent the last 6 months conceptualizing and planning each little detail of this tournament. But I think all that is fine. More importantly, I think youngsters in Rajasthan have got a beautiful platform from remote villages to participate in an extremely structured and an extremely organized tournament, which has been designed in such a way that participation was not a hindrance. It was 7-a-side, there were 7 players aside, there were 7 overs aside. If you had a girl in your team, you got 7 bonus points. So we made the process of participation much simpler than the match itself. So I think today is going to be a great culmination. We're going to have teams from across the country, across the state here. They all already arrived over here. They are waiting for their matches to start. They've come with their families. They've come with their friends. In their local, the event is being brought
conveyed to their local areas through SMSs and mobile updates. So even if people haven't come from the tehsil or village, they've been updated by the minute. And Absolutely I'm sure Neo Sports is going to be watched by their local tehsil, where they're going to watch what's going to happen here. And for them, it's a big thing. I'm sure it's going to be a crazy campaign, and there's a lot of action that's planned out for you tonight. Over here, we're going to have a day full of activities, a lot of action being lined up. I'm going to throw it over to Siddharth Kannan, my co-host, जो अभी पिच पर खड़े हैं. देखते हैं टॉस के अंदर कौन ले जाता है बैटिंग और बॉलिंग का गेम. I'm going to throw it to Siddharth. Good morning, Avneet. Good morning, Tarun and all our viewers. हम लोग live है on Neo Prime. और जी हाँ, ये वंडर सीमेंट साथ साथ क्रिएट महोत्सव है. And obviously ये वर्ल्ड का बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट रहा है. क्यों, वो आपको पता चला कुछ ही क्षणों में. पर फिलहाल हमारे साथ है अनिल झवर जी, जो वाइस प्रेसिडेंट है मार्केटिंग ऑफ वंडर सीमेंट. एंड हमारे डीलर्स भी है हमारे साथ, राहुल मित्तल जी, हनुमंत सिंह जी, जो बहुत ही नामचीन डीलर्स है ऑफ वंडर सीमेंट, एंड ऑफ कोर्स द कैप्टन्स ऑफ बोथ द टीम्स. बट फिलहाल बात करते हैं अनिल झवर जी से. सर, आप बहुत एक्साइटेड फील कर रहे होंगे. वर्ल्ड का बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इसे कहा गया है. आप हमारे दर्शकों को बताइए, ऐसा क्यों कहा गया है? निश्चित रूप से यह टूर्नामेंट विश्व का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है. इसमें लगभग 90,000 खिलाड़ियों ने भाग लेने के लिए आवेदन किया. उसमें से लगभग 40,000 खिलाड़ियों ने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. राजस्थान की लगभग 250 तहसील में 16 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया. अतः निश्चित रूप से यह विश्व का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है. मैंने सुना कि 26 दिसंबर 2015 4,000 टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ खेला था, जो क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं देखा गया है. क्या ये सच है? यह बिल्कुल सत्य है. अगर उस समय हम तहसील लेवल पे जाके माहौल देखें तो वो खेल नहीं, एक तरह का गाँव में उत्साह था. पूरा का पूरा गाँव उन मैचेस को देखने के लिए मैदान पे जमा हुआ था. सर, मैंने सुना है कि आप खुद एक बहुत बड़े क्रिकेट एंथुसियास्ट है, खुद क्रिकेट खेलते हैं, तो अपने क्रिकेटिंग करियर के बारे में हमें बताइए ना. मैं ही नहीं, भारत का लगभग हर युवा अपने समय में क्रिकेट खेल चुका है. मैं भी उनमें से एक हूं. हमारे ज़माने में इस तरह की प्लेटफॉर्म किसी को उपलब्ध नहीं होती थी. आज मुझे गर्व है कि वंडर सीमेंट ने ग्रामीण स्तर पर जाकर इस तरह का प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध करवाया. यहाँ तक कि उन खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया जिन्होंने कभी क्रिकेट का बैट भी नहीं देखा. सर, आपने क्रिकेट का बैट देखा हुआ है, सुना कि आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत छक्के चौके उड़ाते हैं. सर, तो अपने क्रिकेटिंग लाइफस्टाइल के बारे में बताइए. कितनों को आपने छक्का मारा हुआ है, कितनों को चौका? क्रिकेट के शौकीन हम भी थे. हमने भी क्रिकेट खेला है. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने क्रिकेट को रिप्रेजेंट किया है. हमारे समय में सुनील गावस्कर बहुत अच्छे बैट्समैन हुआ करते थे और वो उस जमाने में सभी युवाओं के एक आइकॉन थे. फिलहाल चलते हैं टॉस की ओर. ये है क्वालिफाइंग मैच. जो जीतेगा ये मैच वो पहुंचेगा सेमीफाइनल में. हमारे साथ है दोनों कप्तान, रेफरीज. सर, टॉस हो जाए. दिस इज हेड एंड दिस इज टेल. कौन बोलेगा? एक मिनट सर, आप वो कर लो पहले. कौन मांगेगा पीछे? कौन मांगेगा? नहीं, पहले आप ऐसे कर लो. एक में सिक्का छुपा के, इसमें भी आप पहले पीछे से छुपा लो. दर्शकों को बता दें, दिस इज पाल बालाजी जोधपुर जोन से वर्सेस हंटर क्रिकेट टीम भरतपुर जोन से. जवर साहब टॉस कर रहे हैं और टॉस के रूल्स भी सीख रहे हैं साइमल्टेनियसली. देखिए, जब सिक्का गिरता है तो ये अच्छा शगुन होता है, बाय द वे. अरे सर, खुल्ला क्या ले रहे हैं सर आप? सर, मैं फील्डिंग ले रहे हैं आप. ये है लक्ष्मी नारायण सर जी. पर सुनिए, मैं क्या कहता हूं, ये हमारे सर है, ये जीत चुके हैं टॉस, और हम आपसे पूछना चाहते हैं सर, आप बैटिंग ले रहे हैं, राइट? नहीं सर, फील्डिंग सर. फील्डिंग ले रहे हैं. क्यों, आपको क्या लगता है पिच फील्डर्स को सपोर्ट करता है? नहीं सर, सुबह का सत्र है सर, और सर सुबह की नमी होगी पिच में सर, तो हम चाहते हैं कि फील्डिंग करें सर, और हम कम से कम रन पर होकर सर अपनी दूसरी टीम को सर और अच्छे से सर बैकअप करें और रन बनाए और मैच जीते. सर, अन्नाराम जी, आप ऑब्वियसली आज खेलने वाले हैं. ये क्वालिफाइंग मैच है. जो जीतेगा आज वो सेमीफाइनल में पहुंचेगा. आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी इस क्वालिफाइंग मैच के लिए? सर, मेरी स्ट्रेटजी रहेगी कि हम मेहनत करें खूब और आगे के लिए जाएं, बस यही. लक्ष्मी नारायण जी, आपकी टीम जो पाल बालाजी है, जो आज टॉस जीत चुकी है, आप ऑब्वियसली आज फील्डिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रांग है?
आप किस बॉलर्स पर निर्भर करेंगे? सर बॉलर हमारे तीनों बॉलर अच्छे हैं सर, और तीनों बॉलर से अभी उम्मीद चाहेंगे कि कम से कम रन पर रोके और जल्दी से जल्दी विकेट ले सर। और जितना भी कम रन पर रोकेंगे हम सर, उतना भी हमारे बैट्समैनों को भी मदद मिलेगा। और जल्दबाजी में सर दौड़ बढ़ा जाते हैं और रन बनाने में सर सफल हो और मैच जीते, हम सेमीफाइनल में पहुंचे सर। उम्मीद चाहेंगे कि फाइनल भी खेलें और कोशिशें जारी रहेगी। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे हमारे दोनों कैप्टन्स। हंटर क्रिकेट टीम भारत जोन से टॉस जीत चुके हैं, लक्ष्मी नारायण जी ने लिया है फील्डिंग, एंड ऑफ कोर्स इट्स गोना बी अ वेरी एक्साइटिंग क्वालिफाइंग मैच। जो ये मैच जीतेगा वो पहुंचेगा सेमीफाइनल्स। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वी आर लाइव ऑन नियो प्राइम, कहीं मत जाइएगा। वी विल बी बैक ऑन वंडर सीमेंट साथ साथ क्रिकेट महोत्सव कुछ ही क्षणों में। लेट्स गेट इनटू अ ब्रेक। नमस्ते जी। अरे कैसे हैं आप? आनंदी कहाँ है? आनंदी बेटा क्या कर रही हो? इंडस्ट्री बना रही हूँ। इंडस्ट्री बना रही हो? पंडित जी, आनंदी इंडस्ट्री का शिलान्यास यहीं पर होगा। शुरुआत सही तो हर बात सही। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। PGA Tour's best tee it up in La Quinta, California for the Career Builder Challenge. PGA West TPC Stadium Course will host an elite field including defending champion Bill Haas. 500 FedEx Cup points on the line for the winner in 2016. PGA Tour 2015-16 Career Builder Challenge in partnership with the Clinton Foundation. Friday 22nd Jan to Monday 25th Jan, 1:30 am onwards. Live and exclusive on Neo Sports. एक जबरदस्त मुकाबला शुरू होने को है। आपको बता दें कि दो टीमें आमने सामने हैं आज इस क्वालिफायर मुकाबले के लिए, और आज के दिन 6 मुकाबले खेले जाएंगे। ये पहला क्वालिफायर, इसके बाद 2 सेमीज और ये है मुकाबला। पाल हंटर आमने सामने रहेंगे इस मुकाबले में। पहला क्वालिफायर, जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में सामना करेगी प्रधान क्लब का, और दर्शकों में बहुत ज्यादा उत्साह है इस मुकाबले को लेके। मैं स्वागत करता हूं आसिम जयपुरी का, जो मेरे साथी कमेंटेटर। आसिम, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इस मुकाबले में देखा जाए तो बैटिंग बॉलिंग से ज्यादा ये महत्व रखता है कि आज इस एलिमिनेटर के मुकाबले को जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में पहुंचेगी, और ये एक बड़ी चीज रहेगी इस प्रतियोगिता के। एक बड़ा इवेंट आसिम यहाँ पर। जी शुक्रिया आशीष, बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि जिस तरह का कंपटीशन देखने को मिलता है, फटाफट टाइप क्रिकेट जो होती है, उसमें हमने बार बार जो देखा है वो लगातार यही होता रहा है कि बैटिंग या बॉलिंग ज़्यादा मैटर नहीं करता कि टॉस जीतने के बाद। बहरहाल ये ज़रूर है कि वंडर सीमेंट का जो ये इनिशिएटिव है ये बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। जैसा कि अभी हमने शुरू में ही सुना कि बहुत बड़ा ये टूर्नामेंट रहा है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट टूर्नामेंट रहा है, क्रिकेट टूर्नामेंट रहा है, और इस टूर्नामेंट में हज़ारों की संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। पहले ये तहसील लेवल से, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर जोनल लेवल, फिर स्टेट लेवल तक पहुंचा, और इस तरह से लगातार इस तरह से फिलहाल 2 टीमें आमने सामने हैं, और पाल बालाजी और हंटर क्रिकेट क्लब आज पहला मुकाबला होने को है। और आशीष, इस मुकाबले को देखते हुए हम जैसे ही मैदान पर पहुंचे थे तो काफ़ी ड्यू थी, काफ़ी ओस पड़ी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे तेज़ धूप की वजह से अब मैदान सूख रहा है, तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा टॉस जीतना या हारना। जी हाँ, और पाल बालाजी की टीम आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि इस मुकाबले में, जैसे मैंने पहले बताया, कि ये एक एलिमिनेटर है, और जो टीम जीतेगी वो सामना करेंगी सेमीफाइनल्स में उदयपुर की टीम का। मेज़बान टीम उसको चुनौती देगी प्रधान क्रिकेट क्लब। लेकिन फिलहाल पाल बालाजी जोधपुर जोन और हंटर क्रिकेट क्लब भरतपुर जोन, ये 2 टीम्स आमने सामने हैं इस एलिमिनेटर में। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो वंडर सीमेंट साथ साथ क्रिकेट महोत्सव में 9,894 विलेजेस ने
हिस्सा लिया। इतने जगहों पर इस इवेंट का आयोजन किया गया और आपको बता दें लगभग 40,000 से ज़्यादा खिलाड़ी एक नया कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल आशीष, जिस तरह से अभी तक इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, वंडर सीमेंट का जो ये इनिशिएटिव रहा, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, 7-7 क्रिकेट 7 साइड ये जो टूर्नामेंट रहा, ये जो मुकाबले रहे हैं, इसने बहुत ज़्यादा एक तरह से आकर्षण अपनी तरफ समेटा है और निश्चित तौर पर बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता रही है अभी तक इस टूर्नामेंट को। और आज का दिन फाइनल्स का दिन है और फाइनल्स में जो आज पहली 2 टीमें एक दूसरे के आमने सामने हैं, वो अब मैदान की तरफ बढ़ रही हैं अंपायर्स के साथ और कुछ ही पलों में खेल शुरू होगा। हम जानते हैं बहुत सारे रूल्स हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका हम जिक्र करना चाहेंगे। पाल बालाजी की टीम की अगर बात करें, अन्नाराम चौधरी जो कि कप्तान इस टीम के हैं, ऑलराउंड क्रिकेटर है, बहुत ज़बरदस्त प्रतिभा अभी तक इस टूर्नामेंट में देखने में आई है। और आशीष, अगर आंकड़ों की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है रन्स और विकेट्स की। जी हाँ, अन्नाराम चौधरी 16 विकेट्स ले चुके हैं, जो टीम के कप्तान हैं, आपको बता दें। और ये टीम आज कितनी जल्दी अपने विपक्षी को समेटने वाली है या कितने रन पर रोकने वाली है, इस पर सबकी निगाह रहेगी। और ये है हंटर क्रिकेट क्लब। आपको बता दें इस टीम के खिलाड़ी रितेश, लक्ष्मी नारायण, अमित, सुमित, गौरव, नितेश, मंगल, राम, लखन, गब्बर सिंह और करण, ये है इस टीम के खिलाड़ी। और आपको बता दें इसमें जो लक्ष्मी नारायण टीम के कप्तान हैं, उन्होंने 22 विकेट्स लिए हैं। ये सलामी बल्लेबाज, इंतजार था इनका आज के उद्घाटक मुकाबले का। और ये है अमित और सुमित की जोड़ी। अमित ने अभी तक आसिम इस प्रतियोगिता में 187 रन बनाए हैं और 10 विकेट ले चुके हैं ये। जी हाँ, तो बड़ी उम्मीदें हैं हंटर क्रिकेट क्लब को अपने इस बल्लेबाज से। और सुमित ने भी 136 रन बनाए हैं आशीष, तो दोनों बल्लेबाज बेहतर रहे हैं और अमित ने तो 10 विकेटें भी हासिल की हैं। फिलहाल क्रीज पर पहुंच रहे हैं और इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं सुमित बल्लेबाजी करने के लिए। और एक दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं इस वक्त क्रीज को देखते हुए। निश्चित तौर पर क्योंकि 7 खिलाड़ियों का ये मुकाबला है, यानी कि दोनों टीम्स में 7 खिलाड़ी मौजूद हैं, ये बहुत दिलचस्प होगा कि इस छोटे से ही मैदान पर फील्ड पोजीशंस कैसे लगाई जाएंगी। हाई स्कोरिंग गेम्स होते हैं आशीष। और गेंदबाजी के लिए कप्तान अन्नाराम जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, अन्नाराम चौधरी। जी हाँ, 16 विकेट्स ले चुके हैं ये, आपको बता दें, और बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं अन्नाराम चौधरी। 16 विकेट्स ले चुके हैं और देखा जाए तो इनके सामने दोनों बल्लेबाज हैं अमित और सुमित। जी हाँ आशीष, और ये बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार हुए हैं अन्नाराम। पहली ही गेंद थी और बीट हुए थे बैट्समैन। तो जैसा कि हम मैदान का जिक्र कर रहे हैं, थोड़ी बहुत ओस अभी भी नजर आ रही है। और अन्नाराम की अगर हम बात करें तो लेफ्ट आर्मर हैं और लेफ्ट आर्मर पहली गेंद, पहला ही ओवर शुरू कर रहे हैं, राउंड द विकेट गेंदबाजी के लिए आए हुए हैं। तो ज़रूर देखना होगा कि किस तरह की गेंदबाजी होती है। और ये पहला शॉट, यहां पर पहला चौका इस टीम के लिए, बेहतर शॉट लगाया 4 रन के लिए यहां पर। जी हाँ, बिल्कुल सीधा शॉट खेला था बल्लेबाज ने और ऑफ स्टंप के बाहर फुल गेंद कर बैठे थे अन्नाराम और इसका पूरा फायदा उठाया, सीधा लॉन्ग ऑफ पर गेंद को पहुंचाया था और अगली ही गेंद पर सिंगल ले लिया। ये बॉल जो है वेस्ट नहीं करेंगे। पहली गेंद में उछाल बहुत ज्यादा था, दूसरी पर बाउंड्री और तीसरी गेंद पर सिंगल। जी हाँ, एक चीज तो साफ हो गई है कि बहुत ज्यादा रफ्तार नहीं है अन्नाराम चौधरी के पास और जिस तरह से गेंद को खेला पॉइंट क्षेत्र में और जितने आराम से, जितनी समय से उस गेंद को देखा, इससे पता चल रहा है कि रफ्तार ज्यादा नहीं है, थोड़ी कोशिश और करनी होगी। ओ, इस बार बाल बचे, पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं है। और आपको बता दें कि अन्नाराम चौधरी इस प्रतियोगिता में खेले गए अपने 13 मुकाबलों में 16 विकेट ले चुके हैं।
जो यहाँ बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, मध्यम गति के गेंदबाज हैं, और इस बार इस गेंद को स्क्वैरिश थर्ड मैन की तरफ खेला। जब तक गेंद को थ्रो किया जाए 1 रन जरूर मिल गया था बल्लेबाजों को। स्कोर 6 हो चुका है, पहला ही ओवर चल रहा है। आशीष, तो अन्नाराम जैसा कि आप बता रहे थे कि 10 विकेटें ले चुके हैं, इस 16 विकेटें ले चुके हैं, माफी चाहूंगा। अन्नाराम चौधरी बाएं हाथ के गेंदबाज इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास किया था और अपील करते हुए अंपायर से बहरहाल पहला ओवर समाप्त होता हुआ। आशीष, यहाँ 6 रन आए पहले ओवर में और बड़ा ही इकोनॉमिकल रहा अन्नाराम का ये पहला ओवर। पाल बालाजी की टीम पहले फील्डिंग कर रही है, आपको बता दें, और टॉस जीतकर इन्होंने, मैं समझता हूं, जो फैसला किया कितना फायदा मिलेगा। तो दर्शकों में पूरा उत्साह है और टीम जो है वो जरूर अपनी पूरी जी जान लगाएगी यहां पर सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। तो विष्णु दूसरा ओवर लेकर आए हैं अपनी टीम के लिए। बेहतर शॉट इस बार, एक बाउंड्री, और यहां पर ये दूसरा चौका इस मुकाबले का। खराब गेंद से शुरुआत की है, हालांकि लेफ्ट आर्मर हैं विष्णु, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी और बहुत आसानी से, और स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज ने जैसे ही रूम देखा गेंद को पहुंचा दिया सीधा पॉइंट बाउंड्री के बाहर। तो अमित ने 187 रन बनाए हैं, आपको बता दें, इस प्रतियोगिता में, और अगली गेंद खेलने के लिए तैयार। एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, पीछे फील्डर मौजूद नहीं है, कम से कम यहां पर 2 रन आएंगे। आउटफील्ड स्लो है और इसका पूरा फायदा मिला। जी हाँ, बल्ले के टो एंड पर, जैसा कि हम कहते हैं क्रिकेट में कि जब गेंद ज़्यादा उछाल नहीं लेती या जब विकेट थोड़ा वेरिएबल बाउंस शो करता है, तो ऐसा होता है कभी गेंद बल्ले के निचले हिस्से में लगती है, और इस बार ऐसा ही हुआ था। और दौड़कर रन पूरा करते हुए स्कोर 12 रन हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई क्षति नहीं पहुंची है। आशीष, बाएं हाथ के गेंदबाज एक बार फिर तैयार हो रहे हैं और इस बार बीट किया गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंचती हुई। गति थोड़ी सी कम थी इस बार, और स्लोअर डिलीवरीज को खेलना बड़ा मुश्किल काम है। विष्णु की अगली गेंद, तो इस बार फ्लिक किया हल्का सा, स्ट्राइक रोटेट की। अमित और सुमित की जोड़ी यहां पर सिंगल के साथ थोड़ी हरकत तो की, लेकिन स्कोरिंग रेट अगर देखा जाए, मैं समझता हूं वो इतना अच्छा नहीं कहेंगे। 7 ओवर्स का ये मुकाबला है, एक गेंदबाज 3 ओवर करा सकता है। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। एक और डॉट डिलीवरी। जी हाँ, इस बार फुलर लेंथ की गेंद थी और ललचा गए थे बल्लेबाज, पूरा बल्ला भांज दिया उन्होंने, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई कनेक्ट नहीं हुआ, कोई संपर्क नहीं हुआ। फिलहाल अगली गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेलकर 1 रन दौड़कर पूरा किया बल्लेबाजों ने। तो कोशिश ये हुई थी कि ब्लॉक होल में गेंद की जाए, लेकिन जब ब्लॉक होल में गेंदबाजी की आप कोशिश करते हैं तो कई बार जो है चेंजेस होते हैं। फिलहाल 2 ओवर खत्म होते हुए स्कोर 14। हाय टी जीन्स। नमस्ते आंटी जी। आजा बेटा। शुरुआत सही तो हर बात सही। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। बहुत ही शानदार कैच, जसवंत ने लिया ये कैच, इस मुकाबले का अभी तक का बहुत ही बेहतरीन कैच। मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन, बॉल से बिल्कुल निगाह नहीं हटाई इन्होंने, और पहला झटका लगता हुआ यहां पर इस टीम को। जी आप पटकी हुई गेंद थी और घूम कर मारना चाह रहे थे, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन सीधा बाउंड्री रोप के करीब। और आजकल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी ऐसे कैचेस बहुत देखने को मिल रहे हैं। आशीष जी हाँ, तो सुमित के रूप में पहला झटका लगता हुआ इस टीम को। जसवंत ने लिया कैच और पहली कामयाबी। नए बल्लेबाज गौरव आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तो जो स्कोरिंग है उसको इंक्रीज करने के लिए, जो टेम्पो है उसे बढ़ाने के लिए प्रयास किया था, लेकिन यही होता है और यही हुआ। विकेट जाता हुआ पहला विकेट। बाएं हाथ के बल्लेबाज अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। नए बल्लेबाज गौरव आए हैं, लेकिन वो नॉन स्ट्राइक एंड पर है। फिलहाल इस गेंद को लेकर घूमे लॉन्ग लेग क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया गया और रन लेने की कोशिश थी, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड पर सही सलामत पहुंच गए बल्लेबाज।
पुल करने की कोशिश थी यहाँ पर, और ये जो कैच है मैं समझता हूँ जितना मजा आ रहा है देखने में उतना ही कठिन था ये कैच। एक और बड़ा शॉट यहाँ पर, दर्शक दीर्घा में गई बॉल 6 रन के लिए। जी हाँ, बहुत ही उम्दा शॉट। इस बार बल्ले के बीच गेंद को लिया और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर। तो कोशिश और प्रयास जारी रखना होगा अगर बड़ा स्कोर करना है, क्योंकि ये सिर्फ 7 ओवर्स का मुकाबला है। 7-7 पटकी हुई गेंद लगातार, और इस बार गेंद को पहुंचाया दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। फ्लिक किया, एक बाउंड्री और यहां पर, इसे बोलते हैं सूझबूझ। इससे पहली गेंद पर छक्का लगाया था और यहां पर चतुराई दिखाई, तो 2 गेंदों पर 10 रन हासिल कर लिए हैं। और आशीष, लेग बाई और एलबीडब्ल्यू का कोई मसला नहीं है। इसी वजह से पैड्स में आई हुई गेंद को बहुत आराम से बल्लेबाज खेल रहे हैं। उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑफ स्टंप पे खेलना इतना आसान काम नहीं है। जितनी डिलीवरीज आसिम अभी तक देखा है हमने, मिडल स्टंप पे, लेग स्टंप पे आ रही हैं, पुल करने में मजा आ रहा है बल्लेबाजों को, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर अगर कोई गेंद जाती है तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उन्हें। ये सिर्फ यहाँ की नहीं, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट की कमजोरी है कि ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंदों को पॉइंट के ऊपर से खेलना या कवर्स में खेलना आसान नहीं रहा है। तो और यही उसका तरीका है। एक और बाउंड्री यहां पर, जी हां, मिल गई, एक और चौका। इस बार चालाकी दिखाई, ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई, ज्यादा गति नहीं है तो उसे बस टैप भर कर दिया, इशारा भर कर दिया। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और बल्ले को बस गेंद के पीछे झोंका, गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो 28 हो गया स्कोर 1 विकेट पर। अन्नाराम खुद आए हैं अब जिम्मेदारी संभालने के लिए, क्योंकि इनका ओवर बड़ा इकोनॉमिकल रहा था। पहले ओवर में 6 रन दिए थे और जैसे ही पिटाई हुई इनके गेंदबाजों की, इन्होंने महसूस किया कि अब मुझे आना चाहिए। रिदम में आ चुके हैं बल्लेबाज और उनकी जो बल्लेबाजी है उसको रोकना पड़ेगा। गौरव है इस समय अन्नाराम के सामने। जी हाँ, ये भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं आशीष। तो जब बाएं हाथ का बल्लेबाज आता है तो फील्डिंग में तब्दीली लाजिम हो जाती है, ज़रूर हो जाती है, और इस वजह से इस वक्त एक फील्डर को डीप 5 लेग से हटाकर थर्ड मैन क्षेत्र में पहुंचाया गया है और गेंदबाजी के लिए तैयार। अंपायर इशारा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर से उन्हें वापस 5 लेग पोजीशन पर भेज दिया गया है। अन्नाराम आ गए हैं कप्तान गेंदबाजी करने के लिए। तो ये अतिरिक्त रन और अतिरिक्त गेंद जो इस फॉर्मेट में बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होगी। ये ओवर अब 7 गेंदों का तो कम से कम हो ही गया है। जी हाँ, ये बोनस गेंद दे दी है। पहली ही गेंद जो है लेग स्टंप के बाहर जा रही है, अतिरिक्त का रन भी मिलता है, तो तमाम तौर पर ये एक बहुत फायदेमंद गेंद रही। एक और बड़ा शॉट यहां पर, लेकिन बॉल बैट पे नहीं आई। स्ट्राइक तो चेंज की, लेकिन आसिम 1 रन हासिल कर लिया। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर थी, कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन गेंद बल्ले के बीच नहीं आई और इस वजह से टाइम नहीं कर सके बल्लेबाज। हालांकि स्कोर इस वक्त 30 हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। स्लोअर डिलीवरी, खेलना इतना आसान नहीं रहेगा। क्या ये बॉल बाउंड्री के बाहर जाएगी? 2 फील्डर्स भाग रहे हैं, 1 बाउंड्री और यहां पर अमित अपना अनुभव दर्शा रहे हैं। हम आपको बता दें कि अमित ने 187 रन बनाए हैं इससे पहले खेले गए 13 मुकाबलों में। बहुत ज्यादा अनुभव है इनके पास। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर थी और बहुत ज्यादा रफ्तार नहीं, बल्लेबाज को आसानी से दिखी और उन्होंने टैप किया और इस बार गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। इस बार फ्लिक किया, क्या ये बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर? 2 रन तो ले लिए रनिंग बिटवीन द विकेट्स। थोड़ा सा फंबल देखने को मिला डीप 5 लेग क्षेत्र में और इस वजह से 2 रन बड़ी ही आसानी से पूरे कर लिए। स्कोर 36 हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। और एक बार फिर बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक ले रहे हैं, धूप मैदान पर पड़ती हुई, और इस बार बल्ला गेंद के पीछे पड़ता हुआ 6 रनों के लिए। एक और बड़ा शॉट यहां पर,
इस ओवर में 7 गेंदें तो हो ही चुकी हैं और रनों की बात की जाए तो 13 रन बना लिए हैं। अमित बहुत ज्यादा अनुभवी हैं और कॉन्फिडेंस लेवल इस छक्के के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जो मनोबल है वो 7वें आसमान पर रख ली गेंद पर। चतुराई दिखाई अन्ना राम ने। जी हाँ, एक कन्वेंशनल डिलीवरी जो लेफ्ट आर्मर करते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाजों को ब्लॉक होल में करने की कोशिश। हालांकि बार बार देखा गया है कि बाएं हाथ का गेंदबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज को बहुत परेशान करता है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे से बल्लेबाजी कर रहे हैं आशीष और इसका भरपूर मजा ले रहे हैं यहाँ पर दर्शक। एक और बेहतर शॉट, लेकिन रन मुझे लगता है केवल एक ही आएगा। ओ यहां पर ओवरथ्रोस के रन एक, जी हाँ 44 हो गया स्कोर 1 विकेट पर। ये जो जिंदगी के पहले स्टेप्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आत्मविश्वास के लिए, और ये मेरी जिंदगी का पहला प्रोजेक्ट है। नाइस मूव्स। शुरुआत सही तो हर बात सही। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। तो पिछले 2 ओवर्स में जितने रन हासिल किए हैं उससे थोड़ा फर्क पड़ा है स्कोरिंग रेट में। एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, बॉल, जी हाँ 1 रन तो मिलेगा आसिम। जी इस बार फुलर डिलीवरी थी और इस पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन बाहरी किनारा और थर्ड मैन तक गेंद पहुंची। 1 रन दौड़कर पूरा किया है। स्कोरिंग में इजाफा 45 1 विकेट के नुकसान पर। किस तरीके से यहां पर बड़ा शॉट खेलने की योजना बनाई थी और कोई चारा भी नहीं है, आपको बड़े शॉट्स खेलने पड़ेंगे। तो 45 पर 1 है स्कोर और अच्छा खासा रन रेट यहां पर। काफी बाहर थी बॉल, अंपायर को बिल्कुल भी संकोच नहीं हुआ अपने हाथ स्ट्रेच करने में। संजीव जैन और राकेश जैन हैं अंपायर्स, और एक और अतिरिक्त रन यहां पर कामयाबी एक और मिलती हुई। अतिरिक्त रन जरूर दिए लेकिन विकेट्स का पतन निरंतर है। जी हाँ, आड़ा बल्ला चलाया था, बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे मिड विकेट क्षेत्र में, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधा वही खड़ी हुई विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। एक और विकेट गिरता हुआ। नहीं लगा? अरे भाई मुहूर्त का टाइम बीता जा रहा है। 2 मिनट प्लीज। मुझे और भी कहीं जाना है। तो जाइए। ये लो आ गए। पंडित जी चले गए, फिर आप दोनों है ना, तो सब कुछ है। शुरुआत सही तो हर बात सही। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। एक कामयाबी और मिलती हुई। तो सबसे अनुभवी, सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी जो हैं ये आउट हो चुके हैं और टीम के कप्तान खुद आए हैं बासिम। जी हाँ, लक्ष्मी नारायण आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और वो स्ट्राइक भी लेंगे। आपको बता दें कि बल्ले से भले ही इन्होंने प्रभावित ना किया हो, लेकिन ये सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। 22 विकेट ले चुके हैं लक्ष्मी नारायण, लेकिन फिलहाल यहां पर बल्लेबाजी यहां पर दिखानी पड़ेगी। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, जगह बनाई और स्ट्राइक रोटेट की। अच्छी योजना। जी इस बार बाहर जा रही थी गेंद और इसे बहुत ही आसानी से पहुंचा दिया स्क्वालिश थर्ड मैन पोजीशन पर और 1 रन दौड़कर पूरा किया 47 2 विकेटों के नुकसान पर। तो टॉप विकेट टेकर्स में रहे हैं बल्लेबाज। आज रन बनाने होंगे। बहुत ही उम्दा शॉट मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए। जबरदस्त छक्का, रूम बनाया और गौरव यहां पर अपनी प्रतिभा दर्शाते हुए। फुलर लेंथ की डिलीवरी थी, ज्यादा फुटवर्क इन्वॉल्व नहीं था। अपने बॉडी वेट को कैसे ट्रांसफर किया इन्होंने, देखिए। जी हाँ बिल्कुल, एक ऐसा शॉट जो कि हम अक्सर देखते हैं फटाफट क्रिकेट में, और इस गेंद को पहुंचा दिया था मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। बहुत ही बढ़िया, अब तक का सबसे बड़ा हिट लगाया मेरे ख्याल से। फिलहाल गेंद चेंज हुई है और अंपायर एक बार फिर तैयार होते हुए, गेंदबाज भी तैयार होते हुए। एक और ऊंचा शॉट तो है यहां पर, कैच होने की संभावना। कॉटन बॉल, गौरव आउट हो गए हैं और एक कामयाबी और मिलती हुई।
शुरुआत सही तो हर बात सही। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। गेंदबाज ने ही कैच कंप्लीट किया। तो यही है मजा इस फॉर्मेट का। एक एलिमिनेटर है ये। आज 6 मुकाबले खेले जाएंगे। आज का पहला मुकाबला और नए बल्लेबाज आ गए हैं अब। जी वंडर सीमेंट 7-7 द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट का ये आज आखिरी दिन। फिलहाल पॉइंट की तरफ खेलकर 1 रन पूरा किया है बल्लेबाज ने। मंगल नए बल्लेबाज आशीष। और 5 ओवर्स जो हैं ये समाप्त हो चुके हैं। तीन विकेट्स जा चुके हैं और बचे हुए 2 ओवर्स में आसिम जो स्कोरिंग रेट है इस समय वो 10 से ज्यादा का है। और मुझे लगता है कि अगर इतने ही रन और बना दें तो ये टीम 70-75 रन बना सकती है। जी हाँ आशीष 10.8 रन पर ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर 2 ओवर्स में अतिरिक्त गेंदें नहीं फेंकनी होगी ये अहम हो सकता है। कुलदीप नए गेंदबाज आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहले ओवर में 14 रन दिए थे। कुलदीप का ये दूसरा ओवर है। पहली गेंद, एक बड़ा शॉट खेलने की योजना यहां पर। 2 फील्डर्स के बीच में से बॉल जाने नहीं दिया। 1 ही रन ले पाए। जी हाँ ऑफ स्टंप के बाहर इस बार फुल गेंद फेंक दी थी और जिसको कि कवर्स पे खेल दिया। 1 रन दौड़कर पूरा किया। नए बल्लेबाज अब क्रीज पर आते हुए। ये भी सिंगल। तो स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं और बड़ा शॉट नहीं खेल रहे। बिल्कुल ब्लॉक होल्स में कराने की कोशिश थी कुलदीप की। जी मेरे ख्याल से 7 ओवर का मुकाबला है तो 7 ओवर्स में से ये 2 ओवर अंतिम ओवर डेथ ओवर्स के रूप में देखे जा सकते हैं। फिलहाल ये गेंद लेग स्टंप के बाहर लेकर घूमना चाह रहे थे बल्लेबाज लेकिन कामयाबी नहीं मिलती हुई विकेट कीपर ने बाकी काम पूरा किया। दस के आसपास का स्कोरिंग रेट है इस टीम का। लंबाई देखिए गेंद की। यहां पर जगह ढूंढी, एक बाउंड्री और एक चौका और लगता हुआ यहां पर और 60 पर पहुंची है टीम। जी इसे कहते हैं शक्ति प्रदर्शन। ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ की गेंद की थी गेंदबाज ने और पूरी ताकत झोंक दी थी बल्लेबाज ने। इतनी तेजी से निकली कि दोनों फील्डर्स को बाइसेक्ट कर गई। बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। भरतपुर की है ये टीम। हंटर क्रिकेट क्लब जो बल्लेबाजी कर रहा है। एक और फुलर लेंथ की गेंद थी, पुल करने की कोशिश और लेग बाइज के तो रन ही नहीं है। स्कोर अभी भी 60 है। 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद आ रही है 6ठे ओवर की। तो यहां पर 6 ओवर्स के बाद स्कोर 60 3 विकेटों के नुकसान पर। हाय टी। जीन्स। नमस्ते आंटी जी। आजा बेटा। शुरुआत सही तो हर बात सही। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। साठ पर 3 ये आखिरी ओवर है इस पारी का। पुल करने की कोशिश, एक डॉट डिलीवरी। एक डॉट डिलीवरी जो है मुझे लगता है बहुत ज्यादा परेशानी में डालती होगी। जी हाँ विष्णु है आखिरी ओवर के साथ। गेंदबाजी पहली गेंद हो चुकी है तो अंतिम 5 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी आशीष। शॉर्ट डिलीवरी, उछाल अच्छा खासा, एक और डॉट डिलीवरी। अब तक की इस मुकाबले की सबसे तेज गेंद देखने में आई। बल्ले के ऊपर से गेंद पहुंची थी विकेट कीपर के पास। अच्छी शुरुआत इस ओवर की। जी हाँ गति भी कम है
और दिशा भी इस बार बड़ा शॉट खेलने की योजना, बॉल क्या दर्शक दीर्घा में जाएगी। बेहतर फील्डिंग यहां पर, ये देखना पड़ेगा कि क्या ये बाउंड्री हुई है कि नहीं। हालांकि अंपायर को कोई संकोच नहीं है, इन्होंने बाउंड्री बचा ली है। रिप्लेस देखने होंगे आशीष, और रिप्लेस में क्या यहां पर एक और बेहतर शॉट, एक और छक्का यहां पर। ये टीम आखिरी ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन लेने की कोशिश करेगी। जी हाँ, ये अंतिम ओवर है और अंतिम 2 गेंदें आनी बाकी हैं, तो निश्चित तौर पर पूरा फायदा उठाना होगा हंटर्स को। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर कट करने की कोशिश, कॉट बिहाइंड की अपील और विकेट गया है। आशीष, विकेट जा चुका है यहां पर। लक्ष्मी नारायण आउट होकर विकेट मिलता हुआ शुरुआत सही तो हर बात सही। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। अंतिम गेंद, लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग, पहली इनिंग समाप्त होने को, स्ट्राइक पर निवेश। तो कोई रन नहीं आया, एक और डॉट डिलीवरी और 68 रनों का लक्ष्य मिला है। 67 पर 4 और 68 रन बनाने हैं जीत के लिए, पाल बालाजी के लिए। अमित का परफॉर्मेंस बड़ा जबरदस्त रहा और कुल मिला के 68 रन 7 विकेट में। आसिम, कितना आसान और कितना कठिन रहेगा। लगभग 10 रन पर ओवर बनाने होंगे और एक फायदा जरूर रहता है पहले बल्लेबाजी करने में कि आपको पता रहता है कि कितने रन सामने वाली टीम को बनाने हैं। और हमारे साथी सिद्धार्थ मौजूद है वहां पर खिलाड़ियों के साथ। थैंक यू टू आवर कमेंटेटर्स। फिलहाल हमारे साथ हैं स्टार बैट्समैन। जी हां, ये है अमित, जिन्होंने अभी 36 रन बनाए हैं। एंड अमित, क्या बैटिंग की मेरे भाई, कितने चौके कितने छक्के लगाए, कैसा महसूस हो रहा है? 36 रन बनाए भाई तुमने। जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मतलब मेरी ये कोशिश थी अपनी टीम को अच्छे से अच्छे स्कोर पर लेके जाऊं, लेकिन 36 मतलब संतोषजनक स्कोर है मेरे लिए, लेकिन ये कोशिश थी कि अच्छा स्कोर जाए मेरी टीम का। पिच कैसा है? आसान था बैटिंग के लिए? पिच में थोड़ा स्किट हो रहा है बॉल और बाउंस ज़्यादा है, इतना आसान भी नहीं था, बॉल तेज़ी से आ रहा है, इस कारण बैट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अच्छा भाई, ये तो तुम्हारी बैटिंग हुई, तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर कौन है ये बताओ? मेरा फेवरेट मैक्सवेल। मैक्सवेल, अच्छा, और उनकी तरह खेलते हैं? उनको कॉपी करने की कोशिश करके उनके मूव्स? जी, उनकी मूव्स करता हूँ, उनको तो कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, उनको कॉपी करना तो ये समझ लो। एक अपना फेवरेट स्ट्रोक हमें दिखाना भाई कैमरा के सामने। तुम्हारा फेवरेट स्ट्रोक क्या है? मेरा फेवरेट स्ट्रोक है लेग स्टंप पर पुल करना। एक और बार, 1 2 3 पुल करना। क्या बात है। अच्छा, क्रिकेट से याद आया, आप गॉसिप पढ़ते हैं क्रिकेट के? विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, ये सब दिलचस्पी रखते हैं कि नहीं? जी, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। माने किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है वो आप देखते नहीं है? नहीं, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ अपने काम से काम रखने में ज़्यादा वो है। क्या बात है अमित, 36 रन। एंड मुझे यकीन है कि तुम शायद बेस्ट परफॉर्मर भी हो सकते हो आज के लिए, बट थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। एंड राइट नाउ ओवर टू आवर कमेंटेटर्स। जी, अमित ने 187 रन बनाए हैं अभी तक और उसमें 36 रन और